everyone. I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel, Gyanmanjali Modern School. Today, Standard 6, Subject English, Chapter number 1, When I Was a Child. In previous video, we discussed about the Narayan story, begun to the published in Hindu Madras. He asked me to illustrate them. And then we discuss about and I draw hundreds of pictures. I pick up the techniques quite naturally. Here hard works is techniques means here way of drawing picture. मतलब कि जो हम ड्रॉ करने की जो वे होती है उसे वे ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स. Now further moving, trial and error taught me to use brush and the pen and ink. Trial and error taught me to use brush and pen and ink. Here another hard words is hard words. First one, sorry, here is the meaning, not a hard word. Meaning, first one, trial and error. Trial and error. Here, what is the meaning of trial and error? The process of solving a problem by trying various methods until you find a method that is successful. Means this is the try and try will be success. Like this, the process of solving a problem by trying various methods until you find a method that is successful. मतलब कि हमें तब तक प्रयत्न करना चाहिए, मतलब कि हमें ट्राई एंड ट्राई, मतलब कि ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेस, मतलब कि आपको प्रयत्न जो है वो करते रहना चाहिए. मतलब कि द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम by trying various methods until you find a method that is successful. मतलब कि trial and error taught me to use brush and paint and ink. मतलब कि ऑथर ने तब तक प्रयत्न करते रहे जब तक उसे सफलता ना मिले. Try and try you will be success. Like this, trial and error taught to author to use brush and pen and ink. Other besides Narayan began to ask me to illustrate their story for them. Other besides Narayan began to ask me to illustrate their story for them. मतलब कि उसकी स्टोरी में काम करने के लिए ऑथर को कहा गया. After this, I tried getting a job as a cartoonist in New Delhi. After this, मतलब कि उसके बाद, I tried getting a job as a cartoonist in New Delhi. मतलब कि ऑथर को कार्टूनिस्ट की जॉब मिली. कहाँ? तो इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में. The Hindustan Times told me I was too young to be a newspaper cartoonist. और हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसको ऑथर ने
कहा आई एम टू यंग, मतलब कि अभी तुम काफी छोटे हो। फॉर अ न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट, मतलब कि जो न्यूज़पेपर में जो कार्टून जो आते हैं उसके लिए भी तुम काफी छोटे हो। आई वॉज मोर सक्सेसफुल इन बॉम्बे, आई वॉज मोर सक्सेसफुल इन बॉम्बे, मतलब कि ऑथर को बॉम्बे में काफी सक्सेसफुल बनना था। आई गॉट वर्क इन द ब्लिस एंड द फ्री प्रेस जर्नल, आई गॉट वर्क द ब्लिट्स एंड फ्री प्रेस जर्नल, मतलब कि ऑथर को काम करना था इन द ब्लिट्स एंड फ्री प्रेस जर्नल में। Beside cartoonist, I did comic strips telling the story of Tantri the magazine and other heroes. Besides cartoons, I did comic strips telling the story of Tantri the magician and other heroes. और ऑथर को स्टोरी सुनाई गई फॉर द तंत्री द मैजिशियन, मतलब कि वो जादूगर था, और अदर हीरोज के बारे में। वेरी सुन आई मेड अ नेम फॉर माई सेल्फ एंड जॉइंड अ बिग इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। और काफ़ी कम समय में ऑथर मेड अ नेम फॉर माई सेल्फ एंड जॉइंड अ बिग इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब कि जो सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, फॉर 47 years, मतलब कि फॉर 47 years तब ऑथर की एज थी। आई हैव बीन ड्राइंग कार्टून्स फॉर इट्स फ्रंट पेज, मतलब कि जो द टाइम्स ऑफ न्यूज़ जो पेपर आता है उसके फ्रंट पेज में कार्टून बनाते हैं। ड्राइंग कार्टून्स फॉर इट्स फ्रंट पेज। अ स्टैम्प वाज ब्रॉट आउट टू सेलिब्रेट द 150, मतलब कि 150 the years of this newspaper, मतलब कि 150वां years था for this newspaper, and at the picture is odds it was one of my cartoons, मतलब कि उसका जो 150वीं साल का जो बर्थडे था न्यूज़पेपर का उसमें, and the picture on it was one of my cartoons, उसमें जो ऑथर का जो कार्टून है वो लगा। यस आई हैव वर्क वेरी हार्ड एंड लॉन्ग, मतलब कि ऑथर ने काफ़ी सारा काम किया है और काफ़ी समय तक। बट आई हैव नॉट forgotten that you can see the world through pieces of colored glass, मतलब कि अभी भी जो ऑथर अभी तक नहीं भूले तो कि क्या that you can see, मतलब कि जो आप देख सकते हैं the world through pieces of colored glass, मतलब कि हमारे जो ऑथर ने कांच के टुकड़े में से अलग अलग रंग के जो ग्लास में देखा था वो हम नहीं देख सकते। नॉर हैव आई लॉस्ट माई लव फॉर दोज नॉइसी ब्लैक बर्ड्स, मतलब कि नॉर हैव आई लॉस्ट माई लव फॉर दोज नॉइसी ब्लैक बर्ड्स विच आर ऑलवेज अराउंड अस मैनेजिंग टू सर्वाइव, मतलब कि ऑथर के ऑथर के नज़दीक जो रहते थे ब्लैक बर्ड्स। आई कंटिन्यू टू पेंट क्रॉस, मतलब कि ऑथर ने जो पहले मतलब कि उसकी एज में, मतलब कि जब वो छोटे थे तब उसने जो क्रॉस मतलब कि क्रॉस का पेंट जो किया था वो विथ मच एंजॉयमेंट, मतलब कि काफ़ी उस ऑथर ने काफ़ी एंजॉयमेंट किया था। एज आई डिड ऑन दोज लॉन्ग अगो डेज ऑफ कैरी फ्री चाइल्डहुड where each day was exciting and very hour brought adventure, मतलब कि काफी ऑथर के लिए काफी एडवेंचर रहा था। तो here first section 1 student section 1 is over. True false and let's talk exercise in our next video. Here section 2, first of all we complete the lesson and then we write about in your exercise. Okay, now
Here, section 2. Section 2. A visit to the doctor. A visit to the doctor. A visit to the doctor. Lord Dalhi is perhaps the most famous children's writer in recent years. Here is a memorable extract from his autobiography. Let's start. A visit to the doctor can be a very frightening one for a little child, especially when I see needles, nails and scissors lying around. मतलब कि ये जो हमारा सेक्शन 2 है, अ विजिट टू द डॉक्टर, मतलब ये जो हमारा सेक्शन 2 है वो किसके बारे में है? अ विजिट टू द डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर के पास विजिट के बारे में। अ विजिट टू द डॉक्टर कैन बी अ वेरी फ्रिटनिंग वन फॉर अ लिटिल चाइल्ड, मतलब कि डॉक्टर से मुलाकात करना काफी हमें डरावना लगता है, खास करके जब वो एक नन्हा बच्चा हो। स्पेशली व्हेन ही सीज नीडल्स, नेल्स एंड सीजर्स लाइंग अराउंड, मतलब कि आप देख सकते हैं कि हम डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो उसके नज़दीक क्या रहता है? नीडल्स मतलब कि इंजेक्शंस, नाइफ्स, सीजर्स लाइंग अराउंड, मतलब कि ये जो है वो डॉक्टर के पास रहते हैं। I once had to make a visit to a doctor for an operation when I was with my grandparents in Oslo, in Norway, and I have never forgotten it. I once had to make a visit to a doctor for an operation, मतलब कि ऑथर जो है वो डॉक्टर के पास विजिट में जाते हैं ऑपरेशन के लिए। When I was with my grandparents, मतलब कि उसके साथ उसके grandparents थे in Oslo, in Norway, and I have never forgotten it, मतलब कि जो ये हमारे लेखक मतलब कि हमारे ऑथर है वो कभी भूल नहीं सकते। We are visiting my grandparents' house during the summer holidays. When my mother said to me, "We are going to the doctor this afternoon. He wants to look at your mouth and nose." We are visiting my grandparents' house, मतलब कि ऑथर और सभी We are visiting my grandparents, मतलब कि उसके grandparents के घर गए during the summer holidays, मतलब कि वेकेशन में। When my mother said to me, मतलब कि ऑथर को मम्मी ने कहा We are going to the doctor this afternoon, मतलब कि हम आफ्टरनून मतलब कि दोपहर को हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। He wants to look at your mouth and nose, मतलब कि वो जो डॉक्टर जो है वो तुम्हारा माउथ मतलब कि जो हमारा माउथ है और नॉइस मतलब कि हमारा नोज जो है वो चेक करेंगे, मतलब कि ऑथर का माउथ एंड नोज जो है वो जो डॉक्टर है वो चेक करेंगे। What is wrong with my mouth and nose? I asked, मतलब कि ऑथर ने कहा कि मेरे माउथ और नोज में क्या प्रॉब्लम है? Nothing much, my mother said, but I think you have got adenocytes, मतलब कि ऑथर की मम्मी ने कहा नथिंग मच मतलब कि ज्यादा कुछ नहीं है। My mother said, but I think you have got adenocytes, मतलब कि माता ने कहा पर मुझे ऐसा लगता है कि you have got
Adenocytes here, the meaning is adenoids मतलब कि swollen and sore growth between the back between the back of the nose and the throat. Means swollen and sore growth between the back of nose and the throat. मतलब कि ऑथर को ये बीमारी थी swollen and sore growth between the back of the nose and the throat. Not was the difficult word for an 8-year-old. So I asked her, what are they? Now that was difficult word for an 8-year-old. मतलब कि ऑथर के लिए ये जो वर्ड्स है एडोनाइट्स, वो वर्ड्स काफी पेचीदा था. मतलब कि वो क्या है, जबकि उसकी साल मतलब कि ऑथर की साल जो है वो 8 years old मतलब कि 8 साल की उम्र थी. So I asked her what are they, मतलब कि ऑथर ने कहा कि वो क्या होता है. She told me not to worry about it as it was nothing. मतलब कि ऑथर की मम्मी ने कहा, she told me not to worry about it as it was nothing. मतलब कि कुछ नहीं है, उसके लिए हमें मतलब कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है. I held her hand as we walked to the doctor's house. मतलब कि ऑथर और ऑथर की जो मम्मी है वो उसका हाथ पकड़ के चल के डॉक्टर के घर जाते हैं. When we got there, I was lifted up into the kind of dentist chair in the treatment room. मतलब कि आप देख सकते हैं चित्र में, you can see that the picture of in your textbook page number 19. Okay, so you can see that here is the dentist chair in the treatment room. When we got there, I was lifted up into the kind of dentist chair in the treatment room. The doctor had a round mirror strip on his forehead and he looked into my mouth and up my nose. You can see that the doctor forehead on round mirror strip on his forehead and he looked into my mouth and up my nose. मतलब कि ऑथर की ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाती है. Then he took my mother to one side and he quite talked with her. Then he took my mother to one side and he had a quiet talk with her. I saw my mother looking very serious. She agreed to what he was suggesting. मतलब कि ऑथर की जो माता है उसको डॉक्टर जो है वो कुछ कहते हैं और ऑथर मतलब कि जो हमारे ऑथर है वो देखते हैं. आई सो माई मदर लुकिंग वेरी सीरियस, और उसकी जो ऑथर की जो माता है वो सीरियस होके देखती है. एज शी एग्रीड टू व्हाट ही वाज सजेस्टिंग, और जो डॉक्टर जो ऑथर की मम्मी को जो वो सजेस्ट करते हैं वो देखते हैं. आई वॉच द डॉक्टर एज ही बॉइल्ड सम वाटर इन मेटल मग, और ऑथर देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो some boiled water in metal mug. He then placed a long, thin, shiny instrument in it. और ऑथर ये भी देखते हैं, he then placed a long, thin, shiny instrument in it. I was not frightened or worried, as I was too young to realize that something out of the ordinary was going to happen. I was not frightened, मतलब कि ऑथर जो है वो डरते नहीं है और ना ही घबराते हैं. As I was too young to realize that, मतलब कि ऑथर जो है वो I was too young मतलब कि
जितना समझ सके उतने उम्र में थे। समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वाज गोइंग टू हैपन। देन अ नर्स एंटर्ड, और उसके बाद जो नर्स है वो आती है अंदर। शी टाइड अ रेड रबर apron round my neck. She tied a red rubber apron round my neck. It was very big, मतलब कि ऑथर के ऊपर जो है वो राउंड नेक रबर एप्रॉन जो है वो पहनाती है। It was very big, मतलब कि वो काफी बड़ा होता है। Then she held a covered bowl under my chin. Its curving fitting practically against my chest, मतलब कि ऑथर की चेस्ट पे रखा जाता है। The doctor bent over me, मतलब कि डॉक्टर जो है वो ऑथर को बेंड ओवर करते हैं। Holding that long shiny instrument, and to this day I can remember it perfectly. It was as thick as a pencil and had many sides to it. मतलब कि ऑथर को जो है वो इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है। एंड एट द एंड द मेटल बिकम मच थिनर, और जो मेटल थिनर जो होता है वो काफी थिनर होता है, मतलब कि पतला होता है। एंड इट दैट वाज सेड अ मेटल ब्लेड एट एन एंजल। द ब्लेड वाज जस्ट अ सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि जो ब्लेड होती है वो काफी छोटी होती है। वेरी स्मॉल, वेरी शार्प एंड वेरी शाइनी, मतलब कि काफी छोटी होती है और काफी शार्प होती है और वेरी जो शाइनी भी होती है। द डॉक्टर सेड टू नॉर्वेगन ओपन योर माउथ, मतलब कि जो डॉक्टर जो है वो कहते हैं ओपन योर माउथ। I refused as I thought he was going to do something to my teeth, and from my past experience I knew that it would be painful. मतलब कि ऑथर जो है वो रिफ्यूज, मतलब कि मना कर देते। As thought he was going to do something to my teeth, और ऑथर को ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर जो है वो उसके दांत में कुछ, मतलब कि उसके टीथ में कुछ करने वाला। एंड फॉर मेनी and from my past experience I knew that it would be painful, और ऑथर के पिछले एक्सपीरियंस से वो कहते हैं, मतलब कि उसको पता है कि वो काफी पेनफुल होगा, मतलब कि काफी उसे दर्द होगा। आप कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप जो नन्हे बच्चे होते हैं वो काफी डर जाते हैं, मतलब कि रोने लगते हैं, तो आप सबने देखा होगा। वैसे ये जो ऑथर जो है वो काफी घबरा जाता है, मतलब कि 8 years old, मतलब कि काफी छोटे थे। The doctor spoke again very gently, and I looked a fool. I agreed to open my mouth. It won't take 2 seconds, he said. मतलब कि ऑथर जो डॉक्टर होते हैं वो फिर से कहते हैं कि spoken again very gently, and I looked a fool. I agreed to open my mouth. और ऑथर कहते हैं कि मैं जैसे फूल, जैसे मैं अपने माउथ जो है वो ओपन कर दूंगा। इट वॉन्ट टेक 2 seconds, he said, मतलब कि 2 ही सेकंड लगेगी। ओपन योर माउथ। The tiny blade disappeared and went high up into the roof of my mouth. The doctor gave the blade 4 or 5 very quick little twists, and the next moment a whole lot of blood and flesh come tumbling out into the basin। और मतलब कि जो ऑथर के मुंह में जो बीमारी थी, 5 or quick little twist, and the next moment a whole lot of blood and flesh came tumbling out of into the basin, मतलब कि जो ब्लड जो है वो काफी सारा बहने लगता है और बेसन में निकाल लेते हैं। I was horrified by the huge red lamps that he had fallen out of my mouth, and too shocked to do anything could let up a yell. I thought the doctor had cut off the middle of my head। मतलब कि यहाँ पे जो और मीनिंग है horrified, horrified
ग्रेटली शॉक्ड, मतलब कि इतना सारा काफी जो ब्लड होता है वो देखने के बाद ऑथर जो है वो घबरा जाता है, मतलब कि ग्रेटली शॉक्ड। ग्रेटली शॉक्ड मतलब कि I was greatly shocked by the huge red lamp that had fallen out of my mouth and too shocked to do anything but let out a yell. Yell means a sharp cry of pain. A sharp cry of pain. मतलब कि जो रेड लैम्प फॉलन आउट ऑफ माय माउथ, मतलब कि जो ब्लड है वो पत्थर के मुंह से बाहर निकलने लगता है। टू शॉक टू डू एनीथिंग बट लेट आउट अ यल, मतलब कि जो ऑथर जो है वो कुछ करना चाहते हैं पर अ शार्प क्राई ऑफ पेन, मतलब कि काफी सारा पेन होने की वजह से ऑथर जो है वो रड़ने लगते हैं। आई थॉट द डॉक्टर हैड कट ऑफ द मिडल ऑफ माय हेड, मतलब कि ऑथर को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने जो है वो मिडल ऑफ माय हेड जो है वो डॉक्टर ने कट कर दिया हो। द डॉक्टर सिंपली सेड दोस आर योर एडोनाइट्स, मतलब कि ये जो है द डॉक्टर सिंपली सेड, और डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा है एडोनाइट्स है। आई सेड देयर ब्रीथिंग हार्ड, मतलब कि ऑथर जो है वो ब्रीथिंग हार्ड जो है वो अपना जो उसको डर लगने लगता है वो कम हो जाता है। द रूफ ऑफ माई माउथ सीम टू बी ऑन फ्रेड, आई ग्रैब माई मदर्स हैंड एंड हेल्ड इट टाइटली, मतलब कि जो ऑथर जो है वो अपनी अपनी माता मतलब कि अपनी मम्मी का जो हाथ है वो टाइटली पकड़ लेते हैं। स्टे वेयर यू आर, मतलब कि ऑथर जो कहते हैं अभी रुको, यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट, मतलब कि तुम एक ही मिनट में ठीक हो जाओगे। Okay, I was still dripping blood from my mouth into the bowl which the nurse was holding, मतलब कि I was still dripping blood, मतलब कि जो ऑथर के दांत में से जो ब्लड निकलता था वो अभी निकल रहा है। which the nurse was holding, मतलब कि जो नर्स जो है वो उसके सामने ऐसे बाउल रख के रखती है। split it all out, मतलब कि जितना ब्लड निकलता है उसे निकलने दो। She said, "That's a good boy," मतलब कि जो नर्स है वो कहती है तुम तो अच्छे बच्चे हो। Then the nurse wiped my lips and washed my face, और ऑथर का जो मुंह जो खून से भरा होता है वो वॉश्ड आउट कर देती। They lifted me out of the chair and stood me on my feet. I felt very shy, मतलब कि ऑथर को लिफ्ट मी आउट ऑफ द चेयर, मतलब कि चेयर से बाहर ला जाता है। स्टूड मी ऑन माय फीट, आई फील वेरी शाय, मतलब कि ऑथर को काफी घबराहट होने लगती है। माय मदर टुक माय हैंड एंड वी वॉक द फुल हाफ आवर इट टुक टू रीच होम, मतलब कि ऑथर और उसकी जो मम्मी होती है, माय मदर टुक माय हैंड वी वॉक a full half hour it took to reach home, मतलब कि आधे घंटे से भी ज्यादा जो है वो चलते। नो ट्रॉली कार और टैक्सी फॉर मी, मतलब कि ऑथर के लिए ना ही तो ट्रॉली मिलती और ना ही कार, ये और टैक्सी फॉर मी, मतलब कि ऑथर हियर इज द हार्ड वर्ड ट्रॉली कार means a log, two wheel or four wheel or
4-wheel, cart or vehicle, cart or vehicle pushed by hand, pushed by hand. मतलब कि ऑथर को ट्रॉली कार और टैक्सी कुछ भी नहीं मिलती. ट्रॉली कार मीन्स अ लो 2-wheel और 4-wheel कार्ट फॉर व्हीकल पुश्ड बाय हैंड. मतलब कि जो इंसान जो उसको धक्के मार के जो चलाते हैं उसके बारे में बात की गई. 2-wheel और 4-wheel कार्ट और व्हीकल पुश्ड बाय हैंड. माय ग्रैंडमदर सेड लेट हिम सिट इन दैट चेयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल. मतलब कि ऑथर की जो दादी माँ है वो कहते हैं उसको यहाँ पे चेयर पे सुला दो और थोड़ा आराम कर दे. आफ्टर ऑल ही हैज हैड एन ऑपरेशन. मतलब कि उसका ऑपरेशन हुआ है. सो आई सेट नियर हर एंड शी कवर्ड वन ऑफ माय हैंड्स इन बोथ ऑफ हर्स एंड सेड they won't be the last time you will go to the doctor, and with a bit of luck they want to do you too much harm. मतलब कि ऑथर को रेस्ट करने के लिए कहा जाता है और जो उस ऑथर की जो दादी माँ उसके पास बेस्ट मतलब कि उसके साथ बैठते हैं. They want to be a last time you will go to doctor. मतलब कि अब आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना. With a bit of luck they won't do you too much harm. That was in 1924 when talking about a child tonsils as well as denotes without any intestic was common. I wondered what you would think if a doctor did that you do today. मतलब कि 1924 के बारे में बात की गई है. When talking out a child was tonsils. Here, what is the tonsils? Tonsils, two small muscles. Two small masses of tissue at the sides of the throat. Near the back of the tongue. Near the back of the tongue. What is the tonsils? Two small masses of the tissue at the sides of the throat near the back of the tongue. मतलब कि हमारे टंग और two small masses of tissues at the sides of the throat near the back of the tongue, known as tonsils, as well as denoids. मतलब कि जो उससे हम क्या कहते हैं, denoids, without any anesthetic. Anesthetic means a substance that makes a person unable to feel pain, either in a limited area or in the whole body. Was common. मतलब कि a substance that makes a person unable to feel pain
either in limited area or in whole body। मतलब कि ऑथर की जो मतलब कि किसी के बारे में भी जिससे हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते पेन को, उसके बारे में सब पेन दैट मेक्स अ पर्सन अनेबल टू फील पेन आइदर इन लिमिटेड एरिया और इन होल बॉडी। आई वंडर what you would think if a doctor did that you do today। Okay student, here our section 2 is complete। In our next video we discuss about the exercise। Okay student, here your homework is section number 2, hard words, page number 90 in your rough book in 2 times and read it। Okay student, thank you very much, have a nice day।